Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 11, soil. About soil you have also studied in the class 3rd. So in this chapter we will learn about 3 topics: formation of soil, layers of soil, soil profile, soil erosion and conservation. Soil is very important for life to exist on the earth. Soil हमारे existence के लिए अर्थ पे हमारी life के लिए important है. It help plants to grow and provide home to many small animals and insect. Observe the given sequence of picture and draw the last picture in this sequence. इस sequence में आप देखिए जो rock है उस पे action दिखा रखा है water का, sun का and the dead animals. Dead animals, यहाँ पे sun का action है and here is the action of water. तो in the last section आपके पास soil बन जाएगी. Soil is formed. कैसे देखते हैं? Formation of soil. We already know that soil is formed by the continuous weathering of rocks. हम जानते हैं 3rd क्लास में आपने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है कि सॉइल जो है वो बनती है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बिग रॉक्स एंड ब्रेकडाउन कैसे होगा? बाय द स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड सनलाइट एंड द डेड एनिमल्स, remains of dead animals and plants. So continuous weathering of rocks, continuously rocks का टूटना, big rocks are broken down into smaller grains by natural factors such as wind and rain. जो big rocks हैं वो broke down होते हैं smaller rocks में by the natural factor. कौन से natural factor? जैसे कि wind है, rain है, sunlight है. This process of weathering takes millions and millions of years. ऐसा नहीं है कि soil बहुत जल्दी बन जाती है. It takes a very long period of time, millions and millions of years. Beside the natural factor, the hardness of a particular rock also determine how easily it can break into pieces. Natural factor के अलावा किसी भी particular rock की hardness ये decide करती है कि कितनी easily वो pieces में break होगा. Finally, a layer of soil particle is formed. इतना सारा process होने के बाद finally एक soil की एक layer बनती है. Composition of soil. What is the composition of soil? Soil is made up of sand, silt, clay and along with humus, air and water. Composition of soil यानी soil में क्या क्या चीज़ें present होती हैं? Soil is made up of sand, silt, clay along with humus, air and water. ये सारी चीज़ें soil में present होती हैं. Humus is जब ये सारा प्रोसेस होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का, तब जो डेड एनिमल्स हैं या जो डेड प्लांट्स हैं उनके रिमेन्स भी सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं विच एड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. सो दैट इज डेड रिमेन इन प्लांट्स. डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमस. अदर देन दीज, सॉइल्स ऑल्सो कंटेन पेबल्स एंड स्टोन्स एंड मिनरल्स सच एज कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन. कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन मिनरल्स के नाम हैं, वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. सॉइल में ऑल्सो छोटे स्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेबल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सैंड पार्टिकल आर द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल. सॉइल में सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल दैट इज द सैंड पार्टिकल. सिल्ट पार्टिकल आर मीडियम साइज एंड क्ले पार्टिकल आर द स्मॉलेस्ट इन साइज. यानी कि सॉइल में भी पार्टिकल का साइज होता है. सैंड पार्टिकल लार्जेस्ट साइज, silt particle medium size and clay particle are the smallest in size. Now the type of soil. Soil is formed by the breakdown of rocks over a long period of time. Soil rocks के breakdown से बनती है एक बहुत long period of time में. The size, feel, color and the composition of rock will determine the kind of soil that would be formed at a place. किसी भी rock का size, फील, कलर और उस रॉक का कंपोजिशन ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे किस काइंड की सॉइल बनेगी. बिकॉज सॉइल किससे बनती है? विद द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल अपीयरेंस एंड फील, सॉइल इज ऑफ 3 मेन टाइप्स.
सॉइल की फिजिकल अपीयरेंस यानी जैसी वो सॉइल दिखती है और उसकी फील, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लेई, सैंडी एंड लोमी सॉइल. फर्स्ट वन इज क्लेई सॉइल. As the name indicate, clay, so it consists the clay particle. It consists of clay particle in greater proportion. बहुत ज़्यादा greater proportion या बहुत ज़्यादा रेशो में इसमें clay particle present होते हैं. Clay particles become sticky and lumpy when wet. Clay particles sticky चिपक जाते हैं एक दूसरे से जब वो गीले होते हैं. Due to which it hold a lot of water. और इसी क्वालिटी की वजह से जो क्लेई सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. वाटर डज नॉट फ्लो आउट ईजीली फ्रॉम दिस सॉइल. इस सॉइल से वाटर ईजीली फ्लो नहीं कर सकता. देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल. इसीलिए प्लांट्स जो क्लेई सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज क्लेई सॉइल वाटर को होल्ड कर लेती है, वो वाटर को ईजीली फ्लो नहीं करने देती, तो वहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते. ये आपको डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है दैट क्लेई सॉइल ऐसी होती है क्लेई सॉइल. सेकेंड इज द सैंडी. सेम एज द नेम इंडिकेट, इसमें क्या होंगे, सैंड पार्टिकल्स होंगे. इट कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन ग्रेटर प्रोपोर्शन. सैंडी सॉइल में ज़्यादा रेशो में सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सैंड डज नॉट होल्ड मच वाटर. सैंड वाटर होल्ड नहीं करती है. सिंस sand is rough, water flows out very easily from this soil. sand जो है, जिसको आप हिंदी में रेत बोलते हो, वो बहुत रफ होता है, इसीलिए उसके अंदर से वाटर इजीली फ्लो कर जाता है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता. Therefore plants do not grow very well in this soil as well. इसीलिए सैंडी सॉइल में भी प्लांट्स ग्रो नहीं करते, क्योंकि अगर वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता थोड़ी से भी देर के लिए, तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे. The third type is loamy soil. Plants grow very well in a soil. Loamy soil में plants बहुत अच्छे से grow करते हैं. This soil is a mixture of clay, sand and humus. Loamy soil जो है उसमें mixture होता है clay का, sand का and humus का. It is called loam. इसे loam कहते हैं और it is also called as a garden soil. It also contains minerals, air, small animals and microbes. इसके अंदर minerals भी होते हैं, air भी होते हैं, small animal and microbes भी present होते हैं. इसीलिए minerals होते हैं, इसीलिए भी यहाँ plant अच्छे से grow कर पाते हैं. Plants grow very well in loamy soil. This is loamy soil. Take some clay soil in a funnel with a filter paper. Pour 1 glass of water थ्रू दिस सॉइल एंड ऑब्जर्व फॉर 1 मिनट. आप क्लेई सॉइल लीजिए, उसे फिर एक फ़नल अटैच कीजिए. फ़नल आपको केमिस्ट्री लैब में ही देखने को मिलती है. फ़नल को फिल्टर पेपर से एडजस्ट कीजिए और फिर उसमें आप क्लेई सॉइल डालिए और फिर उसमें 1 गिलास पानी डालिए एंड सी व्हाट हैपन. डिड ऑल द वाटर पास थ्रू द सॉइल. क्या सारा पानी सॉइल से पास थ्रू हो जाएगा? नहीं, बिकॉज क्लेई सॉइल होल्ड द वाटर. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर पास आउट नहीं होगा. नो. डज द सॉइल होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट? येस, बिकॉज यही तो क्लेई सॉइल की क्वालिटी है. इफ़ यू एड सैंड टू दिस सॉइल, विल द स्पीड ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द सॉइल इंक्रीज और रिड्यूस. अगर आप उस क्लेई सॉइल में थोड़ी सैंड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, क्या स्पीड होगी वाटर की पासिंग थ्रू, इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी? थोड़ी सी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो सैंड है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, उसमें से वाटर फ्लो हो जाएगा. Which of these soil is more porous, clay soil or clay soil mixed with sand? Obviously clay soil mixed with sand, क्योंकि clay soil में से तो water पास ही नहीं होगा, वो water को hold कर लेती है. Next topic is layers of soil, soil profile. Dissolve a handful of soil in a glass of water. Wait for 15 to 20 minutes. What do you observe? एक ग्लास में एक मुट्ठी भर सॉइल डिज़ोल्व कीजिए, उसे 10-15 मिनट अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए. आप फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल. कौन कौन सी डिफरेंट लेयर होती हैं सॉइल में? लेट्स सी. इफ़ यू विजिट अ कंस्ट्रक्शन साइट बीइंग डंग अप, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल क्लियरली. अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करते हो जिसको खोदा जा रहा है, तो आप आसानी से सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हैं. लेयर्स ऑफ सॉइल डिपिक्ट द सॉइल प्रोफाइल.
जो सॉइल प्रोफाइल है दैट इज द लेयर ऑफ सॉइल्स. ऑब्जर्व द लेयर ऑफ सॉइल इन द गिवन पिक्चर. देयर आर 3 क्लियर लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल. जो पिक्चर है वो नेक्स्ट पेज पे है, अभी जस्ट देखेंगे. द uppermost layer or the topsoil contain particles of clay, sand, humus and water. Uppermost layer है, that's why it is called as topsoil. Topsoil, as the name indicate, it is the top layer of the soil. It contain clay, sand, humus and water. Air is also packed in the space between particle of this layer. यानी इस layer के particle के बीच में air भी packed होती है. Tiny animal and insect are also found in this layer. This layer contain all the important nutrient for growing plant. यानी इस layer में plant अच्छे से grow करते हैं. इस layer में सारे important nutrient हैं जो किसी भी plant को चाहिए होते हैं grow करने के लिए. Hence this layer is important for plant. यानी topsoil layer or the uppermost layer of the soil is important for plants. The second layer is called the subsoil. Second layer is called as a subsoil. It is found just beneath the topsoil. ये topsoil के just नीचे होती है and contain some humus and broken pieces of rocks. और subsoil में क्या होता है, कुछ part humus का और कुछ broken pieces of rocks. The lowermost layer of soil is called bedrock. जो सबसे lower layer होती है soil की that is called as bedrock. It is found under the subsoil. ये कहाँ मिलती है, subsoil के अंडर में नीचे and mainly consist of large pieces of rocks and bedrocks. तो उसमें काफ़ी सारे large pieces of rocks present होते हैं. See the layer of soil. इतना ये portion. This is humus. यहाँ पे humus है यानी dead remains of plants and animals. तो यहाँ पे सारे minerals हैं, nutrients हैं जो किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करवाते हैं. इतने पोर्शन में दिस इज टॉप सॉइल एंड टॉप सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्लांट. द मिडल वन इज सब सॉइल. सब सॉइल में क्या प्रेजेंट था, सम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, subsoil में some amount of humus and some small pieces of rocks. इसलिए इस portion में है weathered rocks and fragments and this is the lowermost layer that is the bedrock layer जिसमें क्या present है, rocks. Soil erosion and conservation. Whenever there is a strong wind or water current, a lot of loose topsoil gets washed up. जब भी बहुत ज़्यादा strong wind या water current होता है तो जो topsoil layer है, जो loose topsoil layer है, वो उस air और water के साथ washed away हो जाती है. This result in the loss of topsoil. उससे क्या होता है, topsoil का loss हो रहा है which is the most fertile layer. topsoil जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा है, सो दैट इज़ इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर और उसका लॉस हो रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज दैट कैन बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. इसीलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें जिससे कि सॉइल पार्टिकल बाइंड अप होके रहें और टॉप सॉइल का प्रिवेंशन हो, टॉप सॉइल जो है वो वॉश्ड अवे ना हो. The wearing away of topsoil by the action of strong wind and rain is called soil erosion. Topsoil layer का washed away हो जाना with the strong wind or strong rain or strong water is called soil erosion. Heavy rainfall, strong wind and floods are known to increase soil erosion. जब भी heavy rainfall होता है या ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं या flood यानी बाढ़ आती है तब सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी स्पीड इतनी होती है कि उस टाइम पे जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते वहाँ की सॉइल उनके साथ वॉश्ड अवे हो जाती है विद द वाटर एंड विद द विंड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व टॉप सॉइल. टॉप सॉइल को प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है. द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. अभी हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन को बचाना, उसके प्रिवेंशन के तरीके बताना, उसके बचाव के तरीके बताना, दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन.
We can conserve soil in the following way. We should not cut down trees. Trees cut down नहीं करने चाहिए. If for any reason they need to be cut down, we should plant more trees to replace the cut ones. अगर किसी भी रीज़न से हमें वो काटने पड़ गए ट्रीज़, तो उनकी जगह पे हमें और ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कर देने चाहिए. सेकेंड, लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट बैरन. जो लैंड है उसे कभी भी बैरन नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब बंजर, कि वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ ना हो, कोई भी प्लांट ना हो. ट्रीज़ एंड श्रब्स शुड बी प्लांटेड सो दैट द सॉइल इज़ नॉट लेफ्ट लूज. वहाँ पे ट्रीज़ या कोई छोटे प्लांट मतलब वहाँ लगा देने चाहिए ट्रीज़, ताकि जो सॉइल है वो लूज़ ना रहे, क्योंकि अगर वो लूज़ नहीं रहेगी, वो बाइंड अप होके रहेगी ट्रीज़ के साथ, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. फ्लड्स शुड बी चेक्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स. जो फ्लड है उनको हम चेक कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स. सॉइल फर्टिलिटी. द एबिलिटी ऑफ अ सॉइल टू अलाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी. किसी भी सॉइल की एबिलिटी कि वो किसी प्लांट को ग्रोथ अलाउ करे, उस सॉइल में कितने अच्छे से प्लांट ग्रो हो रहा है, ये उस सॉइल की फर्टिलिटी है. दैट इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी. If we keep planting one kind of crop on a piece of land, the soil loses its fertility. अगर हम एक piece of land पे एक ही तरह की क्रॉप बार बार ग्रो करते रहेंगे, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम ऑन अ पीस ऑफ लैंड. ये ज़रूरी है कि आप एक पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते रहे, डिफरेंट टाइप पे. यही नहीं कि आप हर बार सेम क्रॉप ही रिपीट कर दें. To replace the nutrient of the soil, ताकि जैसे एक क्रॉप आपने कोई भी ग्रो कर दी, उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो उसने सॉइल से ले लिए, बट दोबारा जब ग्रो करने की बारी आई तब भी आपने सेम काइंड ग्रो कर दी, तो फिर उसको उस टाइम पे उस सॉइल में वो न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो वो प्लांट को कहाँ से मिलेंगे. तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है. तो हमें क्रॉप्स चेंज करते रहने चाहिए टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल, ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट भी रिप्लेस हो. दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. ये जो प्रैक्टिस है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने की एक सेम पीस ऑफ लैंड पे, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. यानी एक बार अगर आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप वो क्रॉप ना लेके कोई दूसरी क्रॉप लें. द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. क्रॉप रोटेशन से सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प मिलती है. सॉइल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड इन मैनी वेज. सॉइल में भी काफ़ी तरीके से पोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है. फार्मर्स ऐड पेस्टिसाइड्स along with manures in agriculture fields. Chemical and fertilizer of factories are left in the soil and household and factory garbage are dumped in the soil. काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे सॉइल को पोल्यूटेड कर सकते हैं. फार्मर्स अपने फील्ड्स में पेस्टिसाइड यूज़ करके सॉइल को पोल्यूट करते हैं. अलॉन्ग विद मेन्योर इन एग्रीकल्चर फीड, जो खाद डालते हैं एग्रीकल्चर फीड में, उससे भी सॉइल पोल्यूटेड होती है. केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ऑफ फैक्ट्रीज आर लेफ्ट इन द सॉइल. जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपने केमिकल और फर्टिलाइज़र सॉइल में छोड़ देते हैं. एंड द हाउस होल्ड एंड द फैक्ट्री गार्बेज, जो हाउस होल्ड गार्बेज है वो और जो फैक्ट्री का भी कचरा होता है वो, दैट आर ऑल्सो डम्प्ड इन द सॉइल. उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है. ये देखिए इस डायग्राम में यूजिंग पेस्टिसाइड, तो यहाँ भी सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. एंड दिस इज गार्बेज डम्प. हाउस होल्ड हो चाहे फैक्ट्री गार्बेज हो, इट इज़ डम्प्ड इन द सॉइल. दिस कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन. नाउ सम वर्ड्स टू नो. ह्यूमस, dead remains of plants and animals added to make the soil fertile. Humus is the dead remain of plant and animal जो soil में add हो जाते हैं while the breaking down of rocks, जिससे कि soil जो है वो fertile बन जाती है. Loam, garden soil makeup of clay, sand, gravel, humus and water. Soil profile, the layer of soil, topsoil, subsoil and bedrock. Soil erosion, the wearing away of topsoil by the action of strong wind and rain. Soil conservation, the activity which prevents soil erosion. Crop rotation, the practice of growing different crops in the same piece of land is crop rotation. That's all about this chapter. Thank you.